Good morning, my dear teachers. I am again here as I have already promised you that I will show you how to design lesson plan in a easiest way. And to fulfill that promise, I am again with you. So, dear teachers, I want to begin today's lecture with a quote, and that is, if you think you will do. If you think you will do. But if you plan, you will certainly do. If you think you may do, may I have forgotten. If you think you may do, but if you plan, you will certainly do. So here is, in the two sentences, there is two differences. One is carrying may, another is carrying certainly. So may means showing it is possibility. Yes, if you will think that I will do, you might do. If you have time, if you have condition, if you have situation, if you have knowledge, if you have skill, you will do, provided you get all conditions. But in the next sentence, I am telling that, but if you plan, you will certainly do. Certainly means you will certainly do without any hesitation. If you have no skill, you will bring it. If you have no knowledge, you will learn it. If you have no skill, you will search for it. So this is the difference between may and certainly. So I hope this quote is giving a clear-cut message about what I am trying to tell you. So let us begin. And in first, I have given here the total. While making lesson plans, we will have to see how many working days are there. Yes, how many days are working days, not only days but working days. So how many working days are there in whole year? Yes, first of all, you will have to find this one, working days. Next, you will have to divide till half yearly and final year. That means first half and second half. That how many working days are there in half yearly and how many working days are there in final year, second half. Then then divide it by number of chapters. Yes, if you have total number of chapters, days, 210 days in whole year. So you and there are 30 lessons. So you will have to divide it 210 by 30. So here is the result. That means one lesson, it is L for lesson, for 7 days. One lesson for 7 days. So we have got an rough idea that in what proportion I will have to cover, because 7 days it is giving you an idea, but there are some easy topics, there are some harder, some are shorter, some are longer. According to that, we will have to adjust. But whenever we will plan the lesson, this will give us an idea that the previous chapter, how many days it is 5. This lesson is bigger, so I can give it to 9 days, because already I have saved 5. In this way, it will help you to cover your lesson within the time you have been given. As I heard a complaint from school director as well as principal last year, that a teacher, he was unable to cover the whole lessons even after final years. And this complaint not emerged from school, but the sad part is that this complaint come from guardians. Guardian complain it to schools that your teachers did not cover the whole chapters of the book. Then what is the need of buying the whole books? It is right questions. So through this lesson plan, I want to avoid such complaints, as well as it will also give teachers a flow.
in his professional career, and he will feel easy in dealing his daily life works in the school, inside the school and outside the schools both. So dear teachers, here I have come with a model. Yes, this is a model only. You will have to plan your one. Here I am trying to give you how can you make your lesson plan in a easiest way. I have kept everything easy, so please don't bother. I am not going to give you any new idea, only just whatever you are doing, you have been doing in the class. I have just brought it into a lesson plan, and nothing new is there. So first of all, I have made 3 columns. First one is classes, second one is classwork, and third one is homework. This is the 3 column only. This 3 column includes whole lesson plans. So first of all, before planning, you will have to at the heading you have to give subject name, chapter name, like I have given social science, and I have done a lesson plan of element of weather. Yes, it is a lesson of geography from class 7, and number of classes it will take 11. Yes, according to the chapters and its material, it is taking 11 days to me for covering this whole lesson in a satisfied manner. So let us see what I am doing in these 11 days or 11 classes. So first classes goes like this. First classes, in classwork, I will see the opening discussions first of all. Yes, as I have introduced to you in one Saturday in your schools, that what should include in the opening discussions. Here I have given some few ideas that relate relation with other topics, chapters. Yes, I have selected a lesson which is chapter number 5. So what are I have already teach him other 4 lessons. So I must tell him and recall those ideas, that what you have covered in all previous 4, and next what you are going to cover in it, and which part of your knowledge is going to fill this chapter. So it is must to tell the students, so that they will feel little connected. Our ideas function with theory of relation. We can say theory of relativity, but it is related to physics, but not I am telling you about physics here. Yes, but the phrase is matching here, that our idea progress with theory of relativity. If you cannot establish relation with other chapters, other topics, and your day-to-day life, the lesson is not going to be long lasting in your life. Hence, relation with other chapters is must. Next, objectives you are going to achieve through this lesson, and next, available knowledge about the topic with the students. Yes, you name it previous knowledge, but I have given new name because you all have become fed up with previous knowledge. Now you will check available knowledge with the students. Okay. Next, here is reading. First of all, yes, first homework is reading. Reading means not only is students will have to read and find out what dimensions this chapter covers, and will prepare a flow chart of their own. Yes, you have given them this idea. Now they must carry a idea of how to prepare flow chart, and after reading they must make a flow chart. This is their homework in the first class. Next we come review of the flow chart. Yes, whatever they have made, now review if among the students. This review should be among the students, not teachers. They will match with each others, and from where they have drawn their ideas. वे लोग कहाँ कहाँ से अपना आइडिया लाए हैं, वे एक दूसरे को डिस्कस करेंगे, और उसको अपना आपको अगर यदि कहीं गलत है तो सही करेंगे, और यदि कहीं सही है तो दूसरों के सामने ये मैसेज को फैलाएंगे. यस, सो इट विल गिव देम ए गुड अमाउंट ऑफ चांस टू डिस्कस about the chapters. Next है उसी दिन dealing with pronunciation issue. Yes, pronunciation issue is a perennial issue.
in a local or rural area, because students most often speak other language than Hindi also. इसीलिए उन लोगों के सामने ये एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप लोगों को इस चीज़ को डील करने के लिए स्पेशल आपको देना पड़ेगा क्लास प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड। उसमें आप बच्चों के सामने जो जो उनका डाउट रहेगा, जहाँ जहाँ उनको पढ़ने के लिए बोलेंगे, और वे जो जो को प्रोनाउंसिएशन इशू होगा वो अंडरलाइन करते जाएंगे, और लास्ट में उनको बताने का उनको आप बता सकते हैं, या फिर उनका पीयर रिव्यू के जरिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या है। और एक बार नहीं 2-3 बार उनको वहाँ पर रीडिंग करवाना होगा आप उसी क्लास में, ताकि उसका आगे तरफ ये प्रोनाउंसिएशन इशू ना रहे। प्रोनाउंसिएशन इशू रहेगा तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा बच्चा को, और यहाँ तक कि वो स्पेलिंग भी कभी सही नहीं लिख पाएगा। इसको घर में भी पढ़ने में दिक्कत होगा यदि प्रोनाउंसिएशन इशू है तो। इसीलिए आपको स्पेशल वर्क देना है, जबकि ये तो वर्क क्लास 7 में नहीं दिया जाता है, लेकिन हम लोग का वहाँ पर लोकल और रूरल एरिया है, इसीलिए आपको ये करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वर्क जाएगा उन लोग का फिल इन द ब्लैंक्स। यस, ये चैप्टर एंड जो वर्क रहेगा चैप्टर के एंड में, वो उससे रिलेटेड है ये वर्क, वो ताकि घर में सेल्फ स्टडी करे। अगर आप ये वर्क नहीं देंगे तो घर में आप ये लेके गया और आप बोल देंगे घर में पढ़ना, वो कभी नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं कि पढ़ने के बाद करना क्या है। लेकिन आप दे देंगे कि नहीं आपको पढ़ करके फिल इन द ब्लैंक्स को बनाना है बुक का, तो वो ज़रूर उसको किसी न किसी आधार पर, चाहे वर्ड को ढूंढे चाहे सेंटेंस को ढूंढे, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, सो दिस इज 1 मेथड्स, ये कंट्रोल का है ताकि घर में वो ज़रूर पढ़े। नेक्स्ट आ गया थर्ड क्लास मेरा आ गया। थर्ड क्लास में मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, है ना। एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से होगा, क्या होगा, इसके बारे में विशेष थोड़ा चर्चा करूंगा मैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इस लेसन प्लान को डील कर रहा हूँ, इसलिए उस पर डाइव नहीं करूंगा। सो यहाँ पर मैं फर्स्ट डे में एक्सप्लेनेशन में 3 सब हेडिंग्स को डील करूँगा, 3 सब हेडिंग्स, है ना। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, मैं इसको एक्सप्लेन ना करने के लिए 3 को लिख दिया हूँ, लेकिन आप लोग उसको सब हेडिंग्स को ही तीनों को नाम लिख दीजिएगा, कौन कौन सा सब हेडिंग रहेगा, ताकि आप जब एब्सेंट कीजिएगा तो टीचर को वहाँ पहुँचने में टाइम ना लगे कि ये टॉपिक आज डील करना है, तो वो इजीली उसको दिमाग में वो ला पाएंगे क्लास टीचर, सॉरी आप जब एब्सेंट रहेंगे तब, है ना। तो इसीलिए आप सब हेडिंग का नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ द होमवर्क, जो बच्चा को होमवर्क दिए थे यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स बनाने का, उसका रिव्यू भी करना है। हो सके आप इसको पहले भी कर सकते हैं, है ना, और इसको बाद में कर सकते हैं, तो इसके अनुसार आप ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन मैं यदि रहता तो मैं पहले रिव्यू लेता क्या होमवर्क बनाया, ताकि मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है बच्चों के बारे में। तो रिव्यू पहले, उसके बाद फिर आ गया एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में 3 सब हेडिंग, आप लोग 3 सब हेडिंग्स का नाम लिख दीजिएगा, 3 नहीं लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स और MCQ, ये सब 3 को सब हेडिंग करने के बाद कुछ आइडिया बच्चों को ज्ञान हो जाता है। उसके बाद मैं फिल इन द ब्लैंक्स का रिव्यू करने के बाद इन लोग को देता हूँ वही लेसन एंड वर्क का ही, चैप्टर के एंड में जो वर्क दिया हुआ है उसी से ट्रू फॉल्स और MCQ क्वेश्चन बनाने के लिए। मोस्टली आजकल सभी बुक में MCQ रहते हैं, ट्रू फॉल्स रहते हैं, और बच्चों का वो जनरल कॉन्सेप्ट को मापने में बहुत हेल्पफुल हैं ये क्वेश्चन सब। सो यहाँ पर मैं उसको इंक्लूड करता हूँ क्लास वर्क में। नेक्स्ट मैं 4th क्लास में आता हूँ। 4th क्लास में फिर से मेरा रिव्यू होगा, यही सब जो बना के लाए हैं, ट्रू फॉल्स और MCQ। ये रिव्यू पहले होगा बच्चों के बीच में, वो पीयर रिव्यू करेंगे पहले, उसके बाद फिर अपना आप उन लोगों से ओरल रिव्यू लेंगे। ओके, ताकि बच्चे अपने आप में यदि सुधर जा रहे हैं डिस्कस करके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो सबसे बेटर मेथड है बच्चों को पढ़ाने का। और यदि आपका हेल्प का ज़रूरत पड़ रहा है तो आप ओरली यहाँ पर हेल्प करेंगे, कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। ओके, लास्ट में आप पूछ भी सकते हैं कि कौन बच्चा सब राइट बना के लाए थे, कौन बच्चा का सब रॉन्ग हो गया, कौन बच्चा का 50% राइट है। इस प्रकार से आप हैंड रेज करने के लिए बोल सकते हैं, ताकि आपको भी एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाए कि बच्चा कौन सा लेवल पर मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। यस, यहाँ पर नेक्स्ट 3 सब हेडिंग्स को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर आप नाम लिखिएगा, है ना। तो नेक्स्ट 3 सब हेडिंग्स, और वर्क रहेगा मेरा सॉल्व शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वही चैप्टर एंड का वर्क में ही जो वर्क दिया हुआ है ये हो गया। फिर नेक्स्ट डे आएंगे तो फिर रिव्यू लूँगा उसी का जो मैं क्लास वर्क दिया था, और फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट 3 सब हेडिंग्स। इसमें करीबन मेरा 11 को सब हेडिंग्स है, इसलिए मेरे को 9 को हो चुका है। इसमें जिस चैप्टर को मैं इंक्लूड किया हूँ उसमें 11 सब हेडिंग्स है। ओके, तो इसीलिए मेरे को 3 लेना पड़ रहा है। तो 3 सब हेडिंग्स को फिर मैं इंक्लूड किया, है ना। वो भी आप अपना कंफर्टेबिलिटी के अनुसार चूज कीजिएगा। यदि सब हेडिंग्स लॉन्ग है तो आप एक ही लीजिए,
और यदि ज़्यादा स्मॉल है तो आप हो सके कि 5-6 सब हेडिंग्स एक डे में, 1 डे में कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अमूमन बच्चों का एफिशिएंसी और अपने लोड को भी देख करके मद्देनज़र रखते हुए इसको ध्यान में रखना चाहिए कि कितना सब हेडिंग्स इंक्लूड करना है। यदि आपका कोई बिजी शेड्यूल है उस दिन तो आप कृपया कम सब हेडिंग्स इंक्लूड करें, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है, इसको करने के बाद मैं इन लोग अब आ रहा हूँ क्रिएट 10 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। यस, बच्चों का अभी करीबन अभी उन लोग का 80% एक्सप्लेनेशन हो चुका है। तो मैं अब जांच करना चाहता हूँ कि उन लोग का नॉलेज किस लेवल पर उन लोग गेन कर रहे हैं। तो नॉलेज हमको तभी पता चलेगा जब उन लोग खुद से क्वेश्चन बनाएंगे। यस, खुद से क्वेश्चन बनाएंगे। इसका उन लोगों को, जैसे हम बोले थे, आस्किंग इज द बिगिनिंग ऑफ रिसीविंग। तो यहाँ पर जब वो क्वेश्चन बना रहे हैं मतलब आस्किंग कर रहे हैं, एक्चुअली आस्किंग कर रहे हैं खुद से कि हम कहाँ से क्वेश्चन बनाएं, कैसे, कौन सा कॉन्सेप्ट्स को लें क्वेश्चन में। और ये इजी है क्योंकि एक सेंटेंस सेलेक्ट करेगा और एक किसी को मिस कर देगा, स्किप कर देगा, कोई एक वर्ड को स्किप कर देगा बीच से, तो बन जाएगा। करीबन ये एवरेज स्टूडेंट्स और बिलो एवरेज स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं फर्स्ट टाइम। इसीलिए फिल इन द ब्लैंक्स को पहले दिया हूँ। नेक्स्ट आ गया 6th क्लास में एक्सप्लेन द लास्ट 3 सब हेडिंग्स। जैसे मैं बताया था 9 और 12 हो गया ना, तो 12 है लास्ट। हाँ, तो ये उसके बाद रिव्यू होगा, पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी, इसको बाद में भी कर सकते हैं। आप अपना सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले करता हूँ। तो रिव्यू ऑफ द होमवर्क, जो आप होमवर्क दिए थे उसका रिव्यू करेंगे। पहले पीयर रिव्यू, फिर आप अपना फाइनल, इसमें पीयर रिव्यू ही चलता है सेल्फ क्रिएटिव में। और पीयर रिव्यू का मीन्स क्या हुआ कि जैसे वो क्वेश्चन बना के लाया, अब क्वेश्चन बनाने के बाद वो दे दिया अपना बगल वाला बच्चा को बनाने के लिए यहाँ, और वो बच्चा सॉल्व करेगा। क्वेश्चन में कहीं पर इशू है, बनाने में कहीं पर मिस्टेक है, तो बच्चा रेज कर सकता है टीचर को कि टीचर ये यहाँ पर गलत क्वेश्चन बनाया है। तो आप उसको डिस्कशन के जरिए हल कर सकते हैं। आप स्किप करने बोल सकते हैं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो पहले उन लोग को टेस्ट लूँगा मैं, और वो भी खुद का क्वेश्चन बनाया हुआ से, और फिर फाइनल में उन लोग को बोलूँगा कि फिर आप कॉपी चेक करने के लिए दे दीजिए वो, है ना। क्योंकि जब क्वेश्चन बनाने के लिए बोलते हैं तो उनको बोल दीजिएगा कि आप अपना एक तो सीक्रेट पेज में या फिर साइड पेज में रफ कॉपी का आप उसका आंसर भी लिख के ले आइएगा, ताकि उसको चेक करने में दिक्कत ना हो, ठीक। और बच्चा यदि फिर से वो रिव्यू, दूसरा बच्चा यदि चैलेंज करे कि नहीं ये गलत क्वेश्चन है, तो बोल दिखा देगा आंसर कि देखिए यहाँ से है, बुक से वो ढूंढ के दिखा दे। तो ऐसे आइडिया देना होगा बच्चा को, सिर्फ क्वेश्चन बना देने से ही नहीं, बोलने से ही नहीं होगा कि क्या करना है पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आप कहीं पर फेल ना हो जाएं। यदि आप आइडिया दे रहे हैं और उसका एम्प्लॉय करने का यदि स्किल नहीं दे रहे हैं तो वो कभी लागू नहीं करेंगे और आपका उसका फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। बच्चे उसको बोरियल फील करेंगे। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। फिर मैं दे रहा हूँ उसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो बुक के चैप्टर का एंड में है, जो चैप्टर के एंड में दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि मैं अभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है मेरा, और ये इस चीज़ को इसलिए इंक्लूड किया गया कवर होने के बाद, ताकि ये जो कुछ भी आइडिया उसको मिला वहाँ पर वो सम अप करके आइडिया उसका सेल्फ अपनी ओर से क्वेश्चन का आंसर लिखिए। कोई हेल्प नहीं। हाँ, आपसे डाउट है तो सवाल पूछ सकता है, पीयर रिव्यू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आएगा 7th क्लास मेरा। 7th क्लास में मैं फिर से उसका पीयर रिव्यू लूँगा इसी वर्क का, जो सॉल्व आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लॉन्ग है, तो इसीलिए बच्चों को टाइम भी देना चाहिए पीयर रिव्यू में। एक दूसरे का पहले वो लोग चेक करेंगे कॉपी, फिर आप उस दिन छोड़ देंगे, आप कॉपी को उस दिन आप अपना फाइनल रिव्यू नहीं देंगे। बच्चों का ही डिस्कशन तक लिमिट रखेंगे, और फिर आप फिर से चैप्टर को डिस्कशन कीजिएगा दोबारा एक बार बोर्ड में लिख करके। चैप्टर ऑन द बोर्ड अब आ गया, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं चैप्टर ऑन द बोर्ड, क्योंकि आप उसको बोर्ड में लिखिएगा फ्लो चार्ट तुरंत बना करके, और की सेंटेंस की वर्ड्स को फिर से डील कीजिएगा, कौन कौन सा मेन सेंटेंस जो दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, ताकि वो चैप्टर उन लोग का दिमाग में छा जाए। क्योंकि जैसे हम बताए थे पिछला जब स्कूल में गए थे, तो कि इतने सारे वर्ड्स को दिमाग में रखना इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल भी है यदि हम लोग एक मेथड से चले तो। मेथड्स मतलब रिलेशन, फ्लो चार्ट एक रिलेशन दिखाता है हम लोगों को, चैप्टर का हेडिंग से सब हेडिंग तक, पॉइंट्स तक की सेंटेंस की वर्ड्स। तो उसके जरिए आप यदि सबको ट्रेस आउट कर देते हैं बच्चों को, तो उन लोग को ईजी हो जाता है कौन वर्ड्स कौन सेंटेंस को दिमाग में रखना है, और वही उन लोग का पिलर बनता है नॉलेज का उस चैप्टर के विषय पर।
तो इसीलिए आप फिर से एक बार फ्लो चार्ट बना करके बोर्ड में और फिर से डील कीजिएगा लेसन को। नेक्स्ट होमवर्क दीजिएगा सेल्फ स्टडी। यस, सेल्फ स्टडी यहाँ पर देखिए मैं अलग तरीके से बोल रहा हूँ। सेल्फ स्टडी एक मेथड होता है, फ्लो होता है, उसका मतलब स्टडी का मीनिंग ही होगा कि कुछ रिसर्च करना, है ना, कुछ अध्ययन करना। जो रीडिंग करना वो तो सिर्फ हम लोग टॉन्ग प्रोफिशिएंसी को चेक करते हैं, लेकिन स्टडी करना वो ब्रेन प्रोफिशिएंसी को चेक करता है, जिसके बारे में मैं विशेष बताऊंगा एक बार। आप लोग यदि इसको क्वेश्चन के जरिए पूछेंगे तो और अच्छा रहेगा, और मैं नहीं तो दोबारा इसमें बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी बच्चों को कैसे किया जाता है, बच्चों को कैसे करने के लिए बताया जाता है। नेक्स्ट आ गया क्रिएट 10 MCQ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। यस, ये सब करने के बाद पीयर रिव्यू हो चुका है। आप यहाँ पर दे रहे हैं 10 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन बनाने के लिए। इसमें दोनों ही उसका होगा, एक सेल्फ स्टडी भी करेगा और ट्रू लास्ट में करने के बाद वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बना देगा 10। नेक्स्ट आ गया 8th क्लास मेरा। 8th क्लास में मैं पीयर रिव्यू फिर से उसी का जो क्रिएट क्वेश्चन है पीयर टेस्ट ले लेगा वो। ओके, टेस्ट लेगा, पहले जो बच्चा बना के लाया था वो अपना पीयर बगल वाले बच्चे का टेस्ट लेगा, नंबर देगा, कुछ इशू होगा तो आपके जरिए सॉल्व होगा, जैसे मैं बताया पहले, दोबारा और बताने का ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है फाइनल रिव्यू ऑफ ऑल लेसन एंड वर्क। जितना किया था आप उतना तो रिव्यू करते हुए आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक आप फाइनल रिव्यू करिएगा पूरा उसका रफ वर्क में जितना वो चैप्टर एंड वर्क किया था सबका फाइनल रिव्यू, ताकि वहाँ पर आप भी कंफर्म हो जाएं। लेकिन ये ओरली होगा, कॉपी चेकिंग नहीं। बस आप खाली बच्चों का खुद का कॉपी भी बोलिएगा चेक करो, और अगल बगल का कॉपी भी देखने के लिए बोलिए। और ख़ास करके इसमें जो ये स्टूडेंट रहते हैं जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट जीनियस, वो स्टूडेंट का थोड़ा सा आप पॉइंट में रखिएगा, क्योंकि उन लोग का कॉपी यदि उन लोग सही लिखे हैं तो आपको वो बाकी बच्चा कॉपी राइट करवाने में मदद कर देंगे, जो कि आपका काम ईजी हो जाएगा क्लास में। और हम ऐसे बोलबो करेंगे कि यदि आप लोग ऐसे सेटअप कीजिएगा क्लास को, ताकि एक हर एक बेंच में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिले, क्योंकि वो बीच में बैठेगा तो दोनों तरफ का बच्चा को थोड़ा गाइड करेगा, और फिर उन लोग उसके माहौल में आकर के धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैं पिछले बहुत बार बता चुका हूँ कि कमज़ोर बच्चा को एक साथ बैठने मत दीजिए, क्योंकि वहाँ पर फिर एक आपका क्लास में एक धब्बा पैदा हो जाएगा कमज़ोर बच्चा का, इसीलिए वहाँ पर एक इंटेलिजेंट बच्चा ज़रूर डालिएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र द वर्क्स फ्रॉम रफ कॉपी टू नोटबुक। अब यहाँ पर आप जितना था फाइनल रिव्यू कर ली, अब रफ कॉपी से नोटबुक में वो ले आएगा सब वर्क को फाइनल फ्रेश करके। रिव्यू करने के बाद आप दे रहे हैं करने के लिए, क्योंकि बच्चा साफ साफ और सुधारा हुआ चीज़ को लिखे, गलत भी ना लिखे, ताकि कॉपी गंदा भी ना हो और आपको चेकिंग करने में दिक्कत भी ना हो। क्योंकि इस कॉपी से सिर्फ रेफरेंस कॉपी है ये, क्योंकि वो जहाँ भी उसका आगे तरफ पढ़ाई करेगा, इसमें ये नोटबुक में फ्लो चार्ट पहले आएगा, फ्लो चार्ट की आइडिया की पॉइंट्स, उसके बाद लेसन एंड वर्क सब शुरू करेगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, नोटबुक में पहले फ्लो चार्ट होना चाहिए, फिर उसका फ्लो चार्ट में की वर्ड्स की आइडिया सब आ जाएंगे, फिर उसका वर्क सब होना चाहिए, ताकि बच्चा जब भी रिवीजन करे तो ये पहले फ्लो चार्ट में उसका नज़र पड़े, फिर उसका वर्क सब में एग्ज़ाम में उसको दिक्कत नहीं होगा कि बुक दोबारा खोल के देखने के लिए। हाँ, कहीं पर फिर ज़रूरत पड़े तो देख सकता है, लेकिन मोटा मोटी एक आइडिया उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट है 9th क्लास मेरा। 9th क्लास में रिव्यू ऑफ द लेसन। यहाँ पर फिर से मैं एक बार रिव्यू कर रहा हूँ पूरा होल लेसन का, ताकि फिर से बच्चा का रिमाइंड हो जाए कि आइडिया की सेंटेंस, वही फिर से बच्चा का फ्लो चार्ट बोर्ड में बना करके बार बार इसको इसलिए कर रहा हूँ ताकि बच्चा का यदि किसी का कॉम्प्लेन है और कोई डाउट रह गया है तो फिर से मेरे को पूछे, या फिर कोई एब्सेंट भी रह गया बच्चा तो उसको भी दोबारा मौका मिल जाए यहाँ पर। नहीं तो आप एक बार मौका दिए तो फिर वो दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए फिर से दोबारा एक बार शॉर्ट में फिर नोटबुक सबमिट कर देंगे, जो नोटबुक बनाने दिए थे उसको सबमिट ले लेंगे। यहाँ पर मौका देना है, यदि कोई बच्चा नहीं बनाने सका है तो उसको फिर से मौका देना है दोबारा, उसको दूसरा दिन भी, क्योंकि आप तुरंत तो चेक नहीं कर रहे हैं, सबमिट ले रहे हैं, तो इसीलिए। नेक्स्ट है क्रिएट 10 सॉरी ये हो गया 10 MCQ क्वेश्चन। क्रिएट 10 MCQ क्वेश्चंस, यस, वो उसका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट है 10th क्लास में मैं फिर पीयर टेस्ट लूँगा, वही MCQ जो बना के लाया है बच्चा लोग एक दूसरे के बीच में,
और फिर डाउट सॉल्विंग सेशन मेरा शुरू होगा। सब कुछ हो गया लेसन में पीयर, फिर मैं डाउट बच्चा का अमूमन यहाँ पर गांव रूरल एरिया में बच्चे डाउट सॉल्व करना जानते नहीं हैं। आप लोग को डाउट निकालना होगा बच्चों से। डाउट मीन्स आपको सॉबहेडिंग्स के बारे में क्वेश्चंस बना करके फ्लो चार्ट को बच्चा लोग को बनाने बोलना है बोर्ड में, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो तेज़ बच्चे हैं, सबको मिला करके, ताकि वहाँ से वो डाउट निकले उसका और बोलने के लिए मजबूर हो जाए, हैंड रेज करे वो। अन्यथा वो आप यदि छोड़ देंगे तो वो कुछ नहीं पूछेगा। इसीलिए डाउट सॉल्विंग मीन्स डाउट सिर्फ बच्चा को पूछना ही नहीं कि क्या डाउट है, बट यू एक्टिवली फाइंड आउट देयर डाउट थ्रू क्वेश्चंस एंड बोर्ड एक्टिविटी, ग्रीन बोर्ड में एक्टिविटी के जरिए। नेक्स्ट है क्रिएट 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। यहाँ पर दिया हूँ उन लोगों को फिर से एक वर्क दिया हूँ, ताकि उन लोगों को फिर से अपनी और एक पीयर ये लेसन को फिर से वो देखें दोबारा और पढ़ाई करके और क्वेश्चन बनाएं। क्वेश्चन का बनाने के बाद उन लोग आंसर भी साथ में लिख के लाएं अपना अलग जगह पर, ताकि वे लोग जब उसका पीयर रिव्यू के जरिए जब पीयर टेस्ट लेंगे तो उसका क्वेश्चन वहाँ से मैच कर लेंगे कि ये सही लिखा है या नहीं। अगर यदि कोई बच्चा इसमें करता है कि नहीं आपका क्वेश्चन भी सही, आंसर भी सही है, मेरा भी सही है, तो वो टीचर ये करेंगे, डील करेंगे फाइनली कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन बच्चों को फुल मौका देना चाहिए। नेक्स्ट आ गया क्लोजिंग डिस्कशन विथ फ्लो चार्ट। यस, अगेन फ्लो चार्ट आप बनाइएगा और क्लोजिंग डिस्कशंस आप कीजिएगा। चैप्टर के बारे में क्या क्या सीखे, क्या ऑब्जेक्टिव्स मेरा अचीव हुआ, क्या हम लोग पहले जानते थे, क्या हम लोग अभी जाने। ठीक है, पहले हम लोग क्या क्या फ्लो चार्ट में आप लोग क्या क्या बनाए थे और अभी का फ्लो चार्ट कैसे बन रहा है, देखिए। तो ऐसे कंपैरिजन एक्ट होता है क्लोजिंग डिस्कशन में, क्या हम मेरे पास पहले था और अभी है, ताकि हम लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि कहाँ हम थे और कहाँ हम आगे निकले। नेक्स्ट आ गया प्रोजेक्ट वर्क। ये जैसे कि मैं बताया था पहले कि ये एलिमेंट ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में चैप्टर है, नाम है इसका। तो उसके बेस पर मैं यहाँ पर लिखा हूँ इन ए मैप ऑफ इंडिया शो डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया। यस, वहाँ पर बच्चा सेट करके लाएगा इंडिया का मैप में। और ये प्रोजेक्ट वर्क, ये फाइनल वर्क है मेरा, ये सब करने के बाद होमवर्क। उसके बाद यहाँ पर आपका क्लास टीचर का सिग्नेचर है और यहाँ पर आपका प्रिंसिपल का सिग्नेचर है। आपको एक कॉपी बनाना करके ऑफिस में जमा कर, आप लोग सैटरडे को, ये वाला सैटरडे टू सैटरडे जो सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे है, यही सब में आप लोग जितना आप लोग का रहेगा उस 15 डेज के अंदर में चैप्टर कवर करना, उसका आप लेसन प्लान जमा करके ऑफिस में उसी दिन जमा करके उसी दिन प्रिंसिपल और डायरेक्टर रिव्यू करके आप लोग को दे देंगे। और एक कॉपी प्रिंसिपल के पास रहेगा और एक कॉपी आपके पास रहेगा। यहाँ पर डेट भी दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का लेसन प्लान। ये तो मेरे को करीबन 27-28 मिनट लग गया, लेकिन समझाने में और बताने में मैं सीधा सीधी सिर्फ बोलते जाता कर देता तो आसान था। इसको 10 मिनट 15 मिनट में हो जाता वीडियो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको फास्ट करके थोड़ा देख लीजिएगा यूट्यूब में। और जहाँ भी आप लोग का डाउट है वो कमेंट सेक्शन में हमको पूछ लीजिएगा, ताकि आप लोगों का कोई दुविधा ना रहे, क्योंकि ये सेकंड सैटरडे आ रही है और इसमें आप लोगों को इसी सैटरडे से सब लेसन प्लानिंग शुरू कर देना है। और इसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा खास करके प्रिंसिपल और डायरेक्टर को कि उन लोग लीडरशिप का रोल निभाए। वे लोग सबसे पहले बना करके लेसन प्लान बना करके टीचर को दिखाएं, ताकि टीचर्स भी इस पर कंफर्टेबल फील करें और उन लोग को कहीं पर भी दिक्कत हो तो उन लोग डायरेक्टर और प्रिंसिपल से मदद ले सकते हैं। तो ये मेरा स्कूल प्रिंसिपल, डायरेक्टर और टीचर सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया इस वर्क को यदि वे लोग फॉलो करते हैं तो उन लोग का काम बहुत ही आसान हो जाएगा स्कूल में, और वे लोग बच्चों को बहुत ही संतोषजनक शिक्षा दे सकते हैं। सो आई होप मेरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगर डाउट है तो आप लोग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इन माय कमेंट बॉक्स। सो हैव थैंक यू।